Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Club. Myself Muhammad Bharat Kumar. I am your English educator. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. So hi dear friend, today we start our new chapter from Fun with Grammar textbook. Chapter number 3, kinds of sentence. As you know that in previous chapter we define the sentence, means what is a sentence. So sentence is a group of words that make a complete sense. Their first word is a capital, and end of the sentence we put the full stop. And between the sentence, if any proper noun will become, we write in a capital letter. So this is called a sentence. So दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस में. तो पहले आपने देखा कि सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस मतलब वाक्य. यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार. सो बेसिकली हमें पहले इसको समझने से पहले हम देखेंगे सेंटेंस. सेंटेंस मतलब क्या. सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड. पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो हमने यहाँ पर रीड किया था a group of words that make complete sense, it's called a sentence. The basic three necessary things we keep mind in this time. A sentence begun with a capital letter, it make a complete sense, and end with full stop, question mark, or an exclamation mark. That is called a sentence. Now in this chapter we will learn about the 4 kind of sentence. So their name is given here. The first is statement, then second is interrogative sentence, then imperative sentence, and here the fourth one is exclamatory sentence. So first now read these 3 sentence. I like watermelon. I love to paint pictures. Jayant is very happy today. So these are a sentence. So these sentence are a statement sentence. Why it is called a statement? A statement says or states something. It's begun with a capital letter and with a full stop. इसको इसीलिए स्टेटमेंट कहा जाता है कि एक नॉर्मल सेंटेंस है. जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आई लाइक वाटरमेलन, मतलब ये डेली है कि मुझे पसंद की चीज़ है, मुझे वाटरमेलन पसंद है. उनके बाद सेकंड सेंटेंस जो आपने देखा, आई लव टू पेंट पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स पेंटिंग करना पसंद है. उनके बाद जो है नीचे का सेंटेंस जिनमें दिया है, जयंत इज वेरी हैप्पी टुडे, जयंत आज बहुत खुश है. तो ये नॉर्मल क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट है. तो ये जो सेंटेंस है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है और एंड ऑफ द सेंटेंस आप देख रहे हो फुल स्टॉप है. मतलब नॉर्मल बातचीत के दौरान जो यूज कर रहे हो स्टेटमेंट कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट रीड दिस ग्रुप ऑफ 3 सेंटेंस. व्हाट इज योर नेम? डिड यू मीट मिस्टर वर्मा? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? सो ये जो तीनों 3 सेंटेंस में आपने देखा कि बेसिकली यहाँ पर चेंजेस हैं. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस find out that a question mark is given, okay, and then when you read this sentence it asks the question to you, है ना. ये सेंटेंस तीनों 3 के अंदर एक मेन कॉमन बात ये है कि पहले तो ये तीनों 3 के पीछे क्वेश्चन मार्क है. दूसरी जो बात हमें समझने वाली ये है कि सेंटेंस जो है उनका कोई जब रीड करो तो टोन कैसा है, क्वेश्चन पूछने लायक है, क्वेश्चन हमें पूछा जाता है. सो see the definition of the interrogative sentence. Interrogative sentence or a question asks something. It's begin with a capital letter and end with a question mark. So जो question sentence है वो basically
क्वेश्चन पूछने के लिए बोला जाता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस हमें रखना होता है फुल स्टॉप. Okay, so now in next sentence, read these three sentences carefully. Switch off a fan. Switch off the fan. Please come to me. Take the medicine regularly. So in this sentence, okay, someone asks request, someone asks question, not questions basically. Someone or given order to us, request, advice, है ना. So imperative sentence request, command or given direction. It is usually begun with a verb. It's begun with a capital letter and end with a full stop. So imperative sentence में क्या होता है, someone just request to you, someone give command to you, and someone gives direction to you and advice also. So कोई आपको एडवाइस करे, है ना, कोई आपको ऑर्डर दे कि चलो बंद करो फैन को, प्लीज यहाँ पे आओ, और ये मेडिसिन रेगुलर लेना. तो ऐसे सेंटेंस में क्या है कि नॉर्मल कोई बातचीत नहीं रही, उसमें आपको या तो कोई कमांड दे रहा है या तो कोई आपको एडवाइस दे रहा होगा. तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो है, मतलब सेंटेंस है जो है, वो हम सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब देख रहे हो जो ये नीचे की साइड जो वर्ड्स, ये जो सिंबल दिया है वो क्या है, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे कोई सरप्राइज या अमेजिंग आप फीलिंग कर रहे हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज, देन हाउ फास्ट इज सी रनिंग. सो इस तरह से कोई अमेज हो या कोई एक अमेजिंग थिंग्स हैपन हो जाए, है ना, तब हम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते. सो look at the definition. An exclamatory sentence express a strong feeling or emotion. It's end with an exclamation mark. और इस तरह से strong expression, feeling, emotion हो तब इनको exclamatory sentence कहा जाता है. और exclamatory sentence जैसे खत्म हो जाएगा उनके पीछे exclamation mark लगा दिया जाता है. और बेसिकली सभी सेंटेंस जो है हमें पता ही है, इस फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल होता है. So now look at the exercise first. Now it's time to solve this question. And now exercise A, identify the different type of sentence as an interrogative, imperative and exclamatory sentence or a statement. First sentence, please open the door. In this sentence, someone command to someone. So the first sentence is a imperative sentence. So we write here answer imperative against it. First जो sentence दिया है वो कोई कमांड दे रहा है तो imperative sentence हुआ. Second पता ही चल जाता है end of the sentence question mark से means it's called a interrogative sentence. So we write here interrogative. So second sentence, are school book available in the store? We write here interrogative. In third sentence, star are twinkling in the sky. So this is a normal sentence. So we write here a statement. At the third sentence, we write a statement. In the fourth sentence, mother is calling you. So in this sentence, normal is tone is given, so it is also a statement.
फोर्थ सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई कमांड दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। इन फोर्थ सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए इनमें आंसर स्टेटमेंट ही रहेगा। फोर्थ, then fifth, don't talk in my class. So here the teacher give command or a request, or sometime they scold the student that don't talk in my class. So fifth sentence में आंसर आएगा imperative, यहाँ पर command दिया गया है, so we write imperative in fifth. Then in sixth, what are you doing here? In this sentence you say find out at the end of the sentence question marks, so it is a interrogative sentence. ये interrogative मतलब question sentence है. Now in seventh, please tell us the story of Cinderella. So someone request, यहाँ पे कोई request कर रहा है, तो सेवन सेंटेंस में वापस imperative आंसर लिखेंगे हम. Now in eighth sentence, Santi, you should go to school, or Santi, you should go to the doctor. So यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उनके अंदर भी क्या हो रहा है कि कोई एडवाइस दे रहा है कि भाई तुम्हें डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए. सो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? वंस अगेन इम्पेरेटिव. आंसर इम्पेरेटिव लिखिएगा. नाउ नाइन्थ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज. लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो वी राइट एक्सक्लेमेटरी. ओके, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लिखोगे. एंड एंड ऑफ द सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस जो है, चिल्ड्रन प्लीज कम इनसाइड द क्लास, है ना. समवन आस्क और समवन गिव ऑर्डर, कोई ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर. सो वी राइट हियर वंस अगेन इम्पेरेटिव. वापस यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे. सो डियर स्टूडेंट, आप इनके आंसर एक बार को देख लीजिए. imperative, interrogative, statement, imperative, imperative, exclamatory, and imperative sentence. So now in second exercise, make sentence as instructed in bracket using the word given below. So आपको देखो क्या करना है, इनमें सेंटेंस बनाने हैं. ओनली ये ग्रुप वर्ड दिया है, ओनली सिंगल वर्ड. सो देखो फर्स्ट में दिया है टीचर वर्ड, सो टीचर वर्ड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाओगे. देन सेकंड में क्लासरूम दिया है, उनका यूज करके आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है. देन फ्रेंड वर्ड जो यूज करके स्टेटमेंट क्रिएट करना है, बनाना है. और फोर्थ में पेंटिंग जो है, ये वर्ड को लेकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाने हैं आपको. सो देखते हैं. जनरली मैं इसलिए बेसिक डायरेक्ट आंसर पे आ गया क्योंकि मैं इसके फिक्स आंसर नहीं कह सकता. जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस जो दिया है, हैज टीचर कम टुडे, हैज टीचर कम टुडे. ओके, तो यहाँ पर हैज टीचर कम टुडे ये क्वेश्चन सेंटेंस लिखा, तो ऐसा फिक्स नहीं कि यही लिखो, आप चेंज भी कर सकते हो. हु इज योर क्लास टीचर, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो. हु इज द बेस्ट टीचर यू लाइक द मोस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दो. सो मीन्स आपको सेंटेंस कोई भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें कंडीशन ये है कि टीचर जो वर्ड है ना, ये जो टीचर वर्ड है वो बेसिकली आना चाहिए. सेंटेंस आप कोई भी क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम, बट ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन सेंटेंस होना चाहिए. मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, बट टीचर वर्ड आना चाहिए. नेक्स्ट आपको जो दिया है नॉर्मल, ये क्लासरूम, गो टू द क्लासरूम, तो इसमें कोई कमांड दे रहा है, प्लीज कम इनसाइड द क्लासरूम. ऐसा भी सेंटेंस आप लिख सकते हो. प्लीज कीप क्वाइट इन द क्लासरूम, ये भी सेंटेंस आप बना सकते हो. मीन्स इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो. बट
कंडीशन क्या है कि ये वर्ड आना चाहिए क्लासरूम, एंड जो रूल्स है वो कौन सा है कि भाई ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो उसी मुताबिक ये आप बना सकते हो। नाउ इन थर्ड सेंटेंस जो है उनके अंदर देखते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो था वो फ्रेंड वर्ड यूज करना है, बट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए नॉर्मल। ध्रुव इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई गो टू गार्डन विथ माई फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड वर्ड से आना चाहिए, सेंटेंस कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो बट फ्रेंड वर्ड आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे दिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड भी ऐड कर सकते हो और बना सकते हो, जैसे कि वाओ, उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रख दो, और ब्यूटीफुल पेंटिंग, है ना। इस तरह से कोई भी वर्ड आप ऐड करके, मतलब पेंटिंग वर्ड जो है उनका इस्तेमाल करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि टीचर से मैंने दिए 3 सेंटेंस यहाँ पे बनाए। हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर बेस्ट सब्जेक्ट टीचर, विच टीचर टेकिंग योर इंग्लिश सब्जेक्ट, यहाँ पे। सो इस तरह से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस आप बना सकते हो। उसी तरह आप देख सकते हो कि क्लासरूम का यूज करके मैंने इंपरेटिव सेंटेंस बनाए, जैसे कि प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, गेट आउट फ्रॉम माय क्लासरूम, कीप आवर क्लासरूम क्लीन। सो ये ऑर्डर है, ऐसे सेंटेंस है। उनके बाद आप देख सकते हो नॉर्मल सेंटेंस बनाए, आई गॉट टू पार्क विथ माई फ्रेंड, आई डू माई होमवर्क विथ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड मी। सो यहाँ पर एस नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं कि चलो एस लगा दिया जाए, नो। यहाँ पे भी आपको ओनली क्लासरूम लिखना है, एस नहीं लगेगा। अब नॉर्मल ये मिस्टेक मत करना कि आप टीचर है उनका टीचर्स बना दो, जो बोला है वही वर्ड होना चाहिए, एस लगाओगे तो प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा, तो उसी हिसाब से एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उसी तरह लास्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मत रखना भूलना, और लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलना, और इम्पेरेटिव और स्टेटमेंट में फुल स्टॉप रखना मत भूलना।